દુઆ, ઇબાદત, બંદગી, તસ્બીહ અને એકઠા મળીને બધું આપણે કરીએ છીએ. એ સિવાય યુવાનો, બુજુર્ગો માટે એક્ટિવિટી, જેથી એ લોકો એકલતા ના અનુભવે અને યુવાનો ભટકી ના જાય, પોતાના સમાજ સાથે, મજહબ સાથે અને સમાજ સાથે કનેક્ટેડ રહે. અને ધાર્મિક શિક્ષણ બી કીધું. તો આના અંદર ઇનડાયરેક્ટલી મૌલાએ ઇલમ ઇજાલિસની બી એક નિર્દેશ કર્યો છે. તો મૌલાએ ચોખ્ખે ચોખ્ખું આ ફરમાન મુબારકના અંદર ફરમાવ્યું છે કે દુઆ બંદગીની જે જગ્યા હોય એ સિવાય બીજા સ્થળો, તો એવા બીજા સ્થળો કયા હોઈ શકે છે? એક તો જમાખાનાની પ્રોપર્ટીના અંદર જે રિલિજિયસ સ્કૂલો ચાલે છે, નાઇટ સ્કૂલો, એ બી છે. ઓકે. અને આપણે જે જમાતમાં આપણે રહીએ છીએ, આપણે ઘરે ઇલમ મિજાલિસ કરીએ છીએ, તો એ બી એક સ્થળ છે. અને મૌલાએ ફરમાવ્યું છે કે ઇલમ મિજલસમાં જવું ઈમાનની નિશાની છે. તો એ બી ઇલમ મિજાલિસને કીધું કે ઇબાદત બંદગી માટે ઘર હોવું જોઈએ, રાઈટ. દુકાન બંધ રાખવામાં માટે જુલમ છે. કોઈ હાજતમંદ હોય અને તેને માલ જોતો હોય તો ક્યાં જાય? અને સ્કૂલ ચાલુ રાખવાના અંદર અમે બહુ ખુશી છીએ. તો એક જગ્યાએ તો કલામ બિન ભાગ પહેલાના અંદર ફરમાયું કે ઇમામની ખિદમત કરો. પછી કીધું ઇમામ કરતા જમાતની ખિદમત વધારે છે. અને મૌલાએ ફરમાયું કે ઇમામની જમાતની ખિદમત કરવા એના ઉપર બી સ્કૂલ ચાલુ રાખવામાં વધારે ફાયદો છે. તો આ સ્કૂલ છે, ઇલમ મિજાલિસ એ સ્કૂલ છે. તો આ પ્રવૃત્તિ આપણે હંમેશા ચાલુ રાખવી જોઈએ. આપણે જમાખાનાના અંદર તો ઇબાદત બંદગી કરીએ છીએ. નાઇટ સ્કૂલના અંદર બી જે જમાખાને પ્રોપર્ટીના અંદર બચ્ચાઓને સારું રિલિજિયસ એજ્યુકેશન મળે. સોશિયલ હોલના અંદર બી મજહબના રિલેટેડ કોઈ પ્રોગ્રામો થાય. અને એ સિવાય બીજા સ્થળે મૌલાએ ફરમાયું, સ્પષ્ટ શબ્દોના અંદર ફરમાયું. તો બીજા સ્થળો શું છે જમાખાનાની પ્રોપર્ટી સિવાય, જ્યાં ઇલમ જ્ઞાનની વાતો થાય છે? તો આપણે ઇલમ ઇજાલિસ કરીએ છીએ, ઓનલાઈન ઘરે કરીએ છીએ. તો એના અંદર બી મૌલાએ ફરમાયું કે એ ચીજોને ચાલુ રાખવી જોઈએ, એનું આયોજન કરવું જોઈએ, વધારે સારી રીતે એને આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકીએ અને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, એને એન્કરેજ કરવું જોઈએ. શા માટે? કે એવા સમયે કે જ્યારે વિશ્વ વધુ વિભાજનકારી અને વ્યક્તિવાદી બની ગયું છે. હવે આ ચીજોની દુઆ, ઇબાદત, બંદગી તો જમાખાનામાં આવી કરવાનું છે. પણ એ સિવાય જવાનો અને બુજુર્ગો માટે સોશિયલ એક્ટિવિટી અને ધાર્મિક શિક્ષણ હાંસલ કરવા માટે દરેક ઇસ્માઇલી માટે જમાતખાનાના પ્રોપર્ટીના અંદર, બહાર બી એને બહુ આયોજન કરો, એને પ્રોત્સાહન આપો. શા માટે? કે અત્યારે દુનિયા પહેલા કરતા વધારે વિભાજનકારી, તો ડિવિઝિવ થઈ ગયું છે અને વ્યક્તિવાદી થઈ ગયું છે. દરેક જણ પોતા માટે વિચારે છે અને સ્વાર્થી બની ગયા છે બધા વ્યક્તિ. દરેક રીતે લોકો પોતાનું વિચારે છે અને બીજાઓના રૂહાની યા દુનિયાવી ઉદ્ધાર માટે કોઈ વિચારતું નથી. તો આવા સમયે આ બધી ચીજોની બહુ જરૂર છે, મૌલાએ ફરમાવ્યું. ત્યારે આપણને સંબંધિત અને સંયુક્ત રહેવા અને એક વધુ મજબૂત ભાવનાનું સિંચન કરવું જોઈએ. તો આપણે કેવી રીતે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ રહીએ અને એકલા ના પડી જઈએ, વિભાજિત ના પડી જઈએ, તો એના માટે આપણા અંદર એક મજબૂત ભાવના હોવી જોઈએ. આપણે આપણા ઇલમ મિજાલિસના અંદર જોઈએ છીએ, જાહેરના અંદર બી જમાતખાનાના અંદર એકઠા મળીને ઇબાદત બંદગી કરવામાં બહુ ફાયદો છે. લોકો જ્યારે એકલા પડી જાય છે યા સિંગલ થઈ જાય છે, તો લોકો જમાતખાનું પકડી લે છે, કોઈ ખિદમતમાં જોઈન થઈ જાય છે, તો એમનો સારો સમય બહુ સારો પસાર થાય છે. દિલના અંદર એક ખાતરી રહે છે કે આપણે નિયમિત જમાતખાને જઈએ છીએ, દુઆ, ઇબાદત, બંદગી કરીએ છીએ, મૌલાની જમાતની ખિદમત કરીએ છીએ. તો એમના અંદર એક ખુશી રહે છે અને એમને એકલવાયું નથી લાગતું. અને આપણા ઇલમ ઇજાલિસના અંદર બી આપણે ઘણી વખત સાંભળ્યું છે, વાતચીતના અંદર અને આપણે રૂબરૂ બી મુલાકાતના અંદર, કે અમને ઇલમ ઇજલસમાં આવ્યા પહેલા બધું કરવા છતાં પણ અમને એકલવાયું લાગતું હતું, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય લાગતું હતું. પણ હવે આ બધું અમારા દિલના અંદર હંમેશા ખુશી, મૌલાની મોહબ્બત અને નૂરથી દિલ ભરેલું છે. તો આ શું છે કે નિયમિત ઇલમની, મજહબની પ્રેક્ટિસ કરવાથી આપણા દિલ જે મૌલા ઈચ્છે છે કે નૂર, ઈમાન, નમ્રતા, આનંદથી ભર્યા રહે, એ ચીજો બને છે, રાઈટ. તો દરેક ચીજોના અંદર આપણે આ શાહ રહીમનો જોમો છે, તો મૌલા રૂપક, દ્રષ્ટાંત અને મેટાફોરથી સમજાવે છે. પણ છેલ્લે મૌલા એ ચીજનો ઉલ્લેખ કરે જ છે, ધાર્મિક શિક્ષણ, રિલિજિયસ એજ્યુકેશન મૌલા અહીંયા ફરમાવ્યું, રાઈટ. તો મજહબની પ્રેક્ટિસ માટે ફરમાવ્યું. તો આપણે કેવી રીતે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ રહીએ?
અને એકલતા ના અનુભવીએ અને એકબીજાને સાથ અને સહકાર આપતા રહીએ, એના માટે મૌલા આપણને ગાઈડ કરે છે, નસીહત કરે છે. અને એક એવી ભાવના, જે મજબૂત ભાવનાનું સિંચન કરવું જોઈએ. ખાલી આપણે જીસમથી કામ કરીએ એવું નહીં, આપણા હૃદયના અંદર એક સાચી ભાવના હોવી જોઈએ. આપણા ઇસ્માઇલીઓ દીન ભાઈઓની દીની અને દુનિયાવી બહેતરી માટે જે રીતે મૌલા આપણા માટે મહેનત કરે છે, એવી રીતે આપણે પણ, અને ખાસ કરીને દુનિયાની બહેતરીની જરૂર છે, પણ મૌલાએ પણ દીનની બહેતરીની એના કરતાં પણ વધારે જરૂર છે. કારણ કે દુનિયાની બહેતરી આ જીવન પૂરું થઈ જશે ત્યાર સુધી મર્યાદિત છે, પણ રૂહાની જીવન અનંત છે. તો સિંચન, આ ભાવનાનું સિંચન કરવું જોઈએ. સિંચન એને કહેવાય છે કે આપણે કોઈ કોઈ ફળ જોતું હોય, ઝાડ વાવીએ તો એના અંદર સાફ કરીએ છીએ, એને વાવીએ છીએ, એને પાણી ખાતર નાખીએ છીએ, એની સંભાળ રાખીએ છીએ, એને સિંચન કહેવાય છે. બરાબર. તો એ રીતે આપણે ઇલમ મિજાલિસના અંદર બી ઇલમ મિજાલિસ કેવી રીતે વધારે સારી રીતે થાય, લોકો કેવી રીતે વધારે સારી રીતે ઇલ્મ હાંસલ કરી શકીએ, આપણે પોતાના રૂહાની ઉદ્ધાર માટે લોકોને શું મૂંઝવણ કોયડાઓ છે, લોકો કેવી રીતે સારી રીતે ઇલ્મ હાંસલ કરી શકે, પોતાનો રૂહાની ઉદ્ધાર કરી શકે, એના માટે સતત આપણે ભાવનાઓનું, આપણા દિલના અંદર એક સાચી ભાવના હોવી જોઈએ અને ભાવનાથી આપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. અને આપણા સામુદાયિક કેન્દ્રો, કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ, આપણી સઘળી જમાત તેમજ તમારા મિત્રો, પરિવારો અને પાડોશીઓ માટે સમાવિષ્ટતા, ઇન્ક્લુઝિવની લાગણી ધરાવતા હોવા જોઈએ. તો એ તો આપણે વ્યક્તિગત, આપણે મતલબની આપણા રૂહના માટે પ્રેક્ટિસ મૌલાએ ફરમાવ્યું. પછી આપણી જમાતના મેમ્બરો, યુવાનો, બુજુર્ગો માટે, બચ્ચાઓ માટે સામાજિક પ્રવૃત્તિ અને ઇલ્મ હાંસલ કરે, ધાર્મિક શિક્ષણ, એના માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું. હવે મૌલા થોડું વધારે આગળ ફરમાવે છે કે જમાતખાનાની પ્રોપર્ટીના અંદર અથવા એની બહાર એવા સેન્ટરો હોવા જોઈએ કે જ્યાં તમે તમારા મિત્રોને, પરિવારોને અને પાડોશીઓને તમે સમાવેશ કરી શકો. તો આપણે દાખલા તરીકે અહીંયા અમેરિકાના અંદર સુગરલેન્ડના અંદર એચપીસી જમાતખાનું છે, ત્યાં આપણો સોશિયલ હોલ છે, એના અંદર ઘણા બધા પ્રોગ્રામ થાય છે. આપણા ઇસ્માઇલીઓના બી પ્રોગ્રામ થાય છે જમાતના, બીજા કોમવાળા બી આવે છે, પછી એ બીજા મુસલમાન ભાઈ બહેનો હોય કે ક્રિશ્ચિયન હોય, યહૂદી હોય, કે ભલે મજહબ પર આસ્થા ના બી રાખતા હોય. હું અહીંયા એચઈબીમાં એક વખત ગયો તો મને એક ભાઈ મળ્યો, મુસलमान, सुन्नी मुसलमान હતો पाकिस्तान में. तो मैंने कि अल्हम्दुलिल्लाह करीम भाई, कि आपके जमात खाने में, एचपीसी जमात खाने में, सोशल हॉल में कितने अच्छे प्रोग्राम होते हैं. તો ત્યાં બી એવા પ્રોગ્રામ થાય છે જેને આખી દુનિયા, ભલે પછી એ મુસલમાન ભાઈ બહેન હોય, ક્રિશ્ચિયન, યહૂદી હોય કે મજહબ પર ઈમાન ના બી હોય, જે બચ્ચાઓ, યુવાનો માટે, બુજુર્ગો માટે સારા પ્રોગ્રામ હોય છે, જે આખી દુનિયા એને સારી ચીજો કહે છે, એવા પ્રોગ્રામો આપણે થાય છે. અને લોકો આપણા એ દ્વારા આપણા ઇસ્માઇલી મજહબની એ લોકોને ઓળખાણ પણ થાય છે કે આ લોકો મુસલમાન છે, ઇસ્માઇલી મુસલમાન છે. અને એ લોકો ના ફક્ત પોતાનું વિચારે છે, પોતાની જમાતનું વિચારે છે, પણ બીજા લોકો માટે પણ સતત કાર્ય કરે છે. તો જ્યારે બી આપણે ઇલમ સાંભળીએ છીએ, અને ખાસ કરીને આ જુમાના ફરમાન મુબારકના અંદર હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબના ફરમાન મુબારકની સમજણ વધારે ખુલ્લી હતી, સ્પષ્ટ હતી. શાહ કરીમે એના પર થોડો પડદો નાખ્યો. હવે શાહ રહીમના જુમાના અંદર એના પર થોડી ચીજો સમજવી અમુક મુશ્કેલ છે. પણ હંમેશા આપણે ઇલમ સાંભળીએ, વાંચીએ ત્યારે આપણો ખ્યાલ એ હોવો જોઈએ કે જાહેર સગળું દુનિયાને લગતું છે. જેટલી બી આપણે એના અંદર જાહેર સમજણો હાંસલ કરીશું છે, મૌલા આપણી દુનિયાવી બહેતરી બી ઈચ્છે છે, પણ એ એક દુનિયા માટે છે અને દુનિયાનો એક અંત છે ચોક્કસ સમયે. પણ તમે બાતુન જોશો તો જ તમારા કામ થશે. અગર આપણે રૂહનો રૂહાની ઉદ્ધાર ચાહીએ છે, તો એના અંદરથી આપણે બાતુન પકડી લેવું જોઈએ. તો હવે આપણે અહીંયા આ ફરમાન મુબારકની સમજણ આપણે અહીંયા રોકાઈ જઈએ છીએ. ઇન્શાલ્લાહ આપણે આગળ કન્ટિન્યુ રાખીશું. તો હવે આપણી પાસે અડધો કલાક છે, તો છેલ્લી 10 મિનિટ આપણે ફરમાન મુબારકની યાદી અને દુઆ આપીશું. તો 20-25 મિનિટ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન આપણે રાખી શકીએ છીએ. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હાજરી બહુ સારી છે, મેં ધાર્યું હતું એના કરતા. અને ફરી પાછી હું તમારે દરગુજર ચાહું છું કે મારા પોતાનો સમય એડજસ્ટ નથી થઈ રહ્યો, એ રીતે તમને બધાને તકલીફ પડી રહી છે. પણ માશાલ્લાહ જે રેગ્યુલર શુક્રવારે હાજરી હોય છે, એટલી જ હાજરી મને અત્યારે દેખાઈ રહી છે ઓનલાઈન. તો થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા બધાનો સાથ સહકાર માટે, અને બહુ ખુશી થઈ.
તો આપણે આ રીતે હમણાં હજુ ઘણી બધી ઇલમ ઇજાલિસ થશે આ મંગળવારે 11:30 થી 1 વાગે શાહ રહીમના ફરમાન મુબારકને આપણે સમજવા માટે તખ્તનશીનું. તો એ કામ મેં હાથમાં લીધું છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલાની મહેરબાની તમારી બધાની દુઆઓની સાથ સહકારની મને જરૂર છે. તો આપણે પૂરું કરીશું એ. તો ત્યાર સુધી આપણે ચાલુ રાખીશું મંગળવારે. પછી આગળ જોઈશું કે આપણે શું વધુ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન ઓપન કરીએ છીએ. તો તમારા ફોનના અંદર 7 નંબરના અંદર નીચે જે સ્ટાર છે એને 2 વાર તમે પ્રેસ કરશો, ટચ કરશો તો તમારી લાઈન ઓપન થઈ જશે. આજની વાઈજ માટે અથવા આગળ જે વાઈજો થઈ ગઈ છે ઇસ્માઇલી મજહબ માટે તમને કાંઈ પણ સવાલ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. તો હું મૌલાની મહેરબાનીથી તમને જવાબ આપવાની કોશિશ કરીશ. मैं चाहता हूँ नसरीन आपा शारजा और पाकिस्तान वाले जिन्नत आपा से बात करूँ, अगर आपको सही हो तो। नसरीन आपा, शारजा वाले, सॉरी कितने बजे आपके 9:30 बजे मेरे ख्याल से, रात के। आपा सुन रहे हैं मेरे? आपकी लाइन ओपन की। जिन्नत आपा पाकिस्तान वाले, कराची वाले, अगर आप लाइन पे हो और बात करना चाहते हो तो मुझसे बात कर सकते हो। બીજું કોઈ છે મારી સાથે વાત કરી શકે છે? નસરીનબેન એટલાન્ટા વાળા યા જલાલુદ્દીન ભાઈ? यानी मदद करीम भाई। बोले मेरे आपा कैसे हो आप? शुक्र मौला अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद आपका अवाज सुना। बहुत टाइम तो नहीं हुआ है फिर भी शुक्र। જાહેરની જુદાઈ ઘણી વસમી લાગે છે પણ શું કરીએ દિલ મજબૂત રાખવું પડે છે। तो सब लोगों से मोहब्बत करते हम, हमारे कुटुंब परिवार जमात सबको। लेकिन जो जिन्होंने तय किया है कि यही जन्म में हमारा रूह का काम हो जाए और बहुत ईमानदारी मेहनत से अपने रूह के लिए दूसरों के लिए काम करते हैं, तो मेरा दिल बहुत मोहब्बत से भरा हुआ है। हाँ बोलिए आपा। शुक्र शुक्र। तो आपका समझाने का जो मतलब स्टाइल है उससे जो है ना बातें अंदर रूह तक उतर जाती है करीम भाई। शुक्र मौला, तो शुक्र उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत थैंक यू। और सवाल तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन परसों मैं एक वॉइस सुन रही थी, उसमें कुछ असवारी ऐसा आया था कि असवारी कब करोगे, मौलवी से किसी ने सवाल किया था, तो मैं बराबर वो लिख के रखी थी कि असवारी बराबर। का क्या मीनिंग है, ये पूछूंगी आपसे। बराबर છે। तो फिर हसन कबीर साहिब का गिनान है, मौला वेला ते कर जो आवणा जी, वो पीर सदैन साहब का गिनान है। और पीर सदैन साहब का, पीर हसन कबीर साहब का गिना के वेला ते कर जो असवारी। तो असवारी का मतलब ये है कि सवार होना, राइट। तो पहले जमाने में जब मौला मुर्तजा अली के समय से ईरान तक मौला घोड़े घोड़े पे सवार होते थे, असवारी होती थी, राइट। मौला निकलते थे जमात में दीदार देने के और जंग करने के लिए। तो एक वो जाहिर की असवारी है। तो बहुत से गिनानों में पीरों ने आजीजी की है। तो जब पीर सदरुद्दीन साहिब ने ये भविष्यवाणी की कि ये सदी में, ये साल में, ये दिन को मौला हिंदुस्तान में पधारेंगे, तो उसके लिए भी जो गिनानों में आजीजी विनंती है कि असवारी करना हिंदुस्तान में, मौला आप कदम मुबारक फरमाना, तो उसके लिए भी है। जाहिर में भी हम मौला को बुलाते हैं, तो उसको भी असवारी बुलाते हैं ज़ाहिरी दीदार के लिए। और बातुन में हमारे दिल के अंदर मौला का नूर रोशन हो जावे, उसको भी असवारी बोलते हैं, राइट। और मौला जी ओपनली ज़हूरात करें, राइट।
तो तो अकाली शाह माँ-बाप ने फरमाया कि ज़हूरात का काम बहुत मुश्किल है। अच्छे-अच्छे ईमानी भी ईमान नहीं रख पाएँगे। तो आप ये माँगो कि एक बाजू तो मौला ने फरमाया कि असवारी नहीं माँगो, मौला ने फरमाया, ईमान की सलामती माँगो, ईमान की सलामती के साथ छेल्ला दम निकले ये माँगो। लेकिन एक इनोसेंटली निर्दोषता से पीरों ने ये आजीजी विनंती की है, बराबर? कोई परख नहीं माँगी है, राइट? तो असवारी शॉर्ट के अंदर इसको बोलते हैं कि अगर हम मौला को ज़ाहिर में दीदार के लिए आजीज़ी विनंती करते हैं, ओके? और मौला अपनी ज़हूरात ओपनली डिक्लेयर करें कि मैं ही सही खुदा बिन आलमीन हूँ, खुदा का नूर मुझ में है, उसको भी असवारी बोलते हैं। और हमारे दिल में बातुन में हमारा दिल पाक और साफ़ हो जावे, हमारा दिल में मौला का नूर रोशन हो जावे, वो भी असवारी है। और जो पीरों ने फरमाया कि 9 अवतार में 9 दानव छेदिया, तो 9 अवतार के अंदर 9 दानव थे। जैसे श्री राम भगवान के सामने रावण था, उसका कत्ल किया। और श्री कृष्ण भगवान के टाइम में कंस था, तो नरसिंह भगवान के टाइम पे हिरण्यकंस था। इस इस तरह ये 10वां नकलंकी अवतार है, तो ज़ाहिर में भी वो चीज़ बनेगी, जो दैत कालिंगा का है, राइट? तो वो भी मौला जब ज़हूरात फरमाएँगे, तो उसको भी असवारी बोलते हैं। तो ये सारी असवारी है, राइट? तो वो मौला बेहतर जानता है कब करना, कब नहीं करना, राइट? हमको हमारे दिल में जभी भी दुआ माँगने का दिल होता है, दीन और दुनिया में जो अच्छी चीज़ें हमको माँगनी चाहिए, देखिए सजदा करके हमको यही माँगना चाहिए कि मौला हमारे दीन और दुनिया में जो बेहतर है वो तू जानता है, तू कर, राइट? और लास्ट में तो यही माँगना है कि सिजदो करो त्यारे माँगो कि हमने असल मकाने पहुँचाड़ो। तो ये सारी चीज़ें असवारी की है। असवार का एक सिंपल मीनिंग होता है सवार होना, राइट? तो ज़हूरात होती है मौला की, बराबर? जी। हुँ। असवार यानी मतलब ज़ाहिर होना, ज़हूरात हाँ, होना। असवार का मतलब होता है कि सवार होना, राइट? तो समझो कि पहले ज़माने में मौला घोड़े पे सवारी करते थे, राइट? और जमात में पधारते थे ज़ाहिरी दीदार के लिए और बातूनी शनाकत के लिए कि मैं ही सही खुदाविन आलमीन हूँ, राइट? और पीरों ने जो असवारी की विनंती जो आपने गिनान में जो वर्ड सुने हैं, तो एक तो पीरों ने आज हुँ, ही हुँ। विनंती की है कि मौला आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप जमात में पधारोगे। तो वो पीर सदनी साहिब ने कितने सालों पहले भविष्यवाणी की थी और उसके बाद मौला शाह हसन अली शाह माँ-बाप जमात में पधारे, तो उसको भी असवारी बोलते हैं। जब मौला ओपनली पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर देंगे, राइट? जैसे अबुल मिसरी साहब ने वो सब गिनान में से निकाला है कि 2115 की साल होगी, आज से लगभग 85-90 साल के बाद मौला इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज की दोपहर की नमाज के बाद ज़हूरात करेंगे कि मैं ही खुदा का नूर हूँ, राइट? और दुनिया भर के सारे मुसलमान मौला के कदमों में आ जाएँगे, भले इमाम के रूप में नहीं मानेंगे लेकिन कि हमारे जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दो। तो वहाँ ऐसी चीज़ें बताई गई जो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो उसका ज़ोर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं चाइना। तो कम्युनिस्ट लोग क्या मानते हैं कि खुदा जैसा कुछ है ही नहीं और वो लोगों के अंडर में पूरी दुनिया आ जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम कंट्री है, वो लोग उनका कहना नहीं मानेंगे और मुसलमानों को मज़हब को फ़ॉलो करने में बहुत दिक्कत होगी और वो सारे लोग मौला के कदमों में गिर जाएँगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग मौला को हम जैसे मानते हैं, इमाम ही मानेंगे। हाँ, बढ़ेंगे अभी जितने उससे बढ़ेंगे, लेकिन कोई नहीं मानेंगे तो भी एज़ आप हमारे मुस्लिम लीडर हो और हमारे प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। तो तभी मौला ज़हूरात भी फ़रमाएँगे, ज़ाहिर में ओपनली। और शाह करीम ने तो ओपनली कनाडा गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट में मौला ने ओपनली फरमाया है कि आई एम डायरेक्ट डिस्केंडेंट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मेरे में मोहम्मद और अली का नूर है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हुँ, मौला हुँ। ने ऑलरेडी फरमाई है, राइट? लेकिन हमारा हुँ। जब असवारी का हमारा ख़्याल है, तो ज़ाहिर तो मौला मौला की इच्छा होती है तब जमात में पधारते हैं या पूरा ओपनली पूरी दुनिया में ज़हूरात करेंगे कि मैं ही खुदा का नूर हूँ, राइट? वो मौला के हाथ में है कब करना है, लेकिन हमको मौला ने हमारी ओर से मौला क्या चाहते हैं कि हमारा नाफ़रमानी, गुनाही काम दूर हो जावे, हमारा दिल पाक और साफ़ हो जावे
और मौला हाज़र इमाम का नूर हमारे दिल में रोशन हो जावे। हमको ये माँगना है, राइट? ये भी असवारी है। आप समझे? जी, जी। तो ये सारे मीनिंग है असवारी के। अच्छा, हुँ। सही है। थैंक यू करीम भाई। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। और कुछ पूछना है आपको? शुक्र। नहीं, और तो कुछ भी नहीं है। अभी हुँ, आज की वॉइस सुनूँगी, फिर उसमें कुछ निकला तो लिख के रखूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह, ओके। वैसे तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत अच्छे से समझा है आप, लेकिन फिर भी और एक बार सुनूँगी तो कुछ समझ में आएगा। हुँ, हुँ, बराबर है। तो और किसी को कोई सवाल है? तो मैं चाहता हूँ कि नहीं मदद करीम भाई, मौला अली मदद हाँ, बोलो, मैं बोलो। आपको खाली थैंक यू बोलने के लिए बोलती हूँ कि थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा समझाया शुक्र और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मौला बोलते हैं ना कि अभी आर्टिकल भी आया था कि सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने डॉक्टर को हुँ, थैंक हुँ, यू किया कि उन्होंने आइस का उनको बताया। बोले हुँ, आप भी अपने इल्म वालों को थैंक यू करें और उनको उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको उनके लिए बहुत कुछ आप भी करें, जो आपको शु इल्म देते हैं। तो मैं उस लिहाज़ से बोलती हूँ कि हुँ, हुँ, आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो थैंक यू आप वेरी मच। हमको इल्म दे तो रहे हैं। हम सब आप शुक्र में है। और सब हम मौला का ही शुक्र करें। मौला मुर्तज़ा अली इल्म हाँ, का समंदर है और थैंक यू वेरी मच आपके जी, जी। अल्फ़ाज़ बहुत मीठे, बहुत प्यारे, बहुत रिस्पेक्टफुल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबको एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप यस, मेरी यस, रिस्पेक्ट करो, बराबर है आपके दिल में, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये आई नो, सब कुछ आई नो। सब मौला ने ही किया है और ये मैं अकेला कुछ करने वाला नहीं था, मुझे आप सब लोगों हुँ, की ज़रूरत थी। तो हुँ, एक इल्म मिजलिस में रेगुलर हाज़िरी भी देना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? हुँ, तो और आप जैसे शाह करीम ने फरमाया कि सगली बाबतों में सत्य माटेની खोज એ सगळું તમારા थकी છે। हर चीज़ के हुँ, अंदर जी, पूरी खुदा की कायनात है, उसमें से सच ढूँढ निकालना हक वो हमारा काम है और ये सब आपकी वजह से है, शाह करीम ने मौला ने फरमाया, राइट? जी, वो खुद जी, मौला करता है और हमको क्रेडिट हमको देता है। और बाद में जी, मौला ने फरमाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को, ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदारी उठाने के लिए राज़ी है, लेकिन ये सब आपके हाथ में है मौला ने। अगर आप चाहोगे, तो ये होता रहेगा। जी, आप 1 मर्तबा चाहोगे तो मौला ने फरमाया हम 100 मर्तबा चाहेंगे, आप 1 कदम चल के आओगे, हम 100 कदम ज़्यादा चल के आएँगे। जी। तो जी, सबका अली मदद। कंट्रीब्यूट सब कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सबका कंट्रीब्यूट बहुत बड़ा है। एक एक बहुत ब्यूटीफुल मिसाल है, तो कोई पर्टिकुलर कोई आपके लिए या मेरे लिए कोई पर्सन के लिए नहीं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। तो हज़रत यूसुफ पैगंबर बहुत खूबसूरत थे और जब वो मिस्र में गुलाम के रूप में जब बेचे जा रहे थे, तो उनकी बोली बोली जा रही थी। तो बहुत चालाक, बहुत होशियार, इल्मी है, खूबसूरत है, तो उनकी बड़ी-बड़ी बोली बोली जा रही थी। तो एक बूढ़ी माँ जी थी, उसने भी कुछ बोली बोली तो लोग हँसने लगे। तो तो बोले क्यों हँसते हो? तो बोले कि तेरी ताकत नहीं है तू हज़रत यूसुफ को खरीद सके। तो बोले कोई बात नहीं लेकिन मैं जब बोली बोलती हूँ ना, तो मेरा भी नाम लिस्ट में आएगा, राइट? तो जब लिस्ट पढ़ा जाएगा कि बोली बोलने वाले कौन थे, तो मेरा भी नाम आएगा। तो ये बुड्ढी बाई समझो कि मैं हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ करीम, राइट? तो ये आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हो, बुजुर्ग हो, इतने मोहब्बत करने वाले हो, तो मेरा भी नाम मौला लिखेगा। राइट? कि मैं भी तो इस जी, चीज़ में जी, तो थोड़ा तो हिस्सा था उसकी मेहरबानी की जी, वजह से। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। कहने का मतलब कि कोई छोटा-बड़ा नहीं है। मौला ने फरमाया जी, हम आपकी कदर आपके दिल में जो इमाम की मोहब्बत है उससे करते हैं, राइट? हाँ। तो थैंक यू और वेरी मच। आपने जो इंग्लिश भाषा शुरू किया ना, वो बहुत अच्छा किया, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। शुक्र बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को हम इसको माशाल्लाह। नसीन आपा की वाइज़ें हम बहुत जगह बेचते हैं जो जो उर्दू नहीं समझते, सिर्फ़ इंग्लिश स्पीकिंग है, तो राइट, उनको राइट। बहुत फ़ायदा हुआ है। तो माशाल्लाह, थैंक यू माशाल्लाह, वो ये करने का भी, माशाल्लाह। तो शुक्र अभी अभी मौला। देखो मैं एक चीज़ बोलने वाला था और आपने वो बोल दी। तो अभी देखो नसरीन आपा हमारे इल्म मजालिस के अंदर उनकी वाइज़ आती है हर वेडनेसडे को और जी, वो तो सर्टिफाइड मिशनरी भी हैं, वहाँ दुबई, जी, शारजाह में वाइज़ करते हैं, वहाँ सोशल हॉल में भी जी, वाइज़ करते हैं। जी, और एक दूसरा ग्रुप है, जो इंग्लिश ग्रुप है, जी, तो उन्होंने भी मुझे बताया अभी कि अभी उनसे अकेले से नहीं होता है, तो एक मर्तबा वो वाइज़ करेंगे, एक मर्तबा नसरीन आपा करेंगे।
तो अभी उनको भी मौला बहुत ज़्यादा खिदमत दे रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हो और हम सब लोग उनको साथ सहकार देवें। जैसे आपके जी, कितने प्यारे अल्फ़ाज़ हैं, राइट? जैसे एक ही नूर है, हम जी, दिन भाई-बहन सब एक ही है। इस तरह आप शाह करीम का ही फरमान है कि आप किसी की तारीफ़ करो, तो उसमें कंजूसाई मत करो, दिल खोल जी, के तारीफ़ करो। और जी, ऐसा कौन कर सकता है कि जो ये समझता है कि सारी तारीफ़ के लायक सिर्फ़ खुदा ही है, खुदा शाह ही। रहीम ही है। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ की हम तारीफ़ करते हैं, तो वो शाह रहीम की ही तारीफ़ होती है, बराबर? जी, સર્વે जी, વખાણ बिल्कुल, અલ્લાહ માટે बिल्कुल। છે જે સગળી મખલુકાતનો પરવદિગાર છે. याली अल्हम्दुलिल्लाहि मदद रब्बिल आलमीन. शुक्र याली अल्हम्दुलिल्लाह. मदद करीम भाई, हाँ, बोलो. कौन बोलो છો? मैं गुलशन बोल रही हूँ। हाँ, याली मदद, मोलाई मदद. કેમ છો આપા બોલો? मुझे छोटा-सा क्वेश्चन आपसे करना है, उससे पहले मैं ये हाँ, बोलूँ कि आपकी जो वॉइस करते हैं आप, वो हाँ, किसी हाँ. तारीफ़ के आप मोहताज नहीं हैं। हम कुछ बोल नहीं सकते, वो शुक्र हमारी अल्हम्दुलिल्लाह. रूह को छू जाती है। सवाल शुक्र ये है अल्हम्दुलिल्लाह. कि मुझे आप थोड़ा-सा फ़ानूस के बारे में बताएँगे? तो आप सूरह नूर की आयत की बात कर रहे हो, राइट? नहीं, नहीं, ये जो आजकल फ़ानूस आ रहा है हर जगह पे, ओके, ओके. हाँ, ये हर जो कंट्री में आता है, उसकी हाँ, हाँ. सिग्निफिकेंस आप शॉर्ट में हुँ. बता दें प्लीज़। तो ये जो दुबई में जो प्रोग्राम होने वाला है स्पोर्ट्स के उसके बारे में आप बता रहे हाँ, हो, वो राइट? तो दुबई में डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहा है, हाँ, तो हाँ. इसकी राइट, क्या राइट. सिग्निफिकेंस है? हुँ. तो मैंने उसकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की है, लेकिन देखो जैसे कि दुनिया में एक बहुत स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इवेंट होता है, ओलंपिक है समझो, बराबर? तो ओ ओलंपिक का जो जो एक सिंबल होता है, वो पूरी दुनिया में उसको घुमाया जाता है, राइट? ओके? तो एक एक यूनिटी की निशानी है, राइट? तो समझो कि पूरी दुनिया में इस्माइली है, उनका एक कॉमन प्रोग्राम समझो कि अभी दुबई में हो रहा है, राइट? कि जी, नैरोबी में हो रहा है? दुबई में हो रहा है, राइट? अभी हेलो? पाकिस्तान से हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, नहीं, नहीं, अभी जो फ़िलहाल होने वाला है, वो दुबई में हो रहा है ना? दुबई में होने वाला है, वो दुबई में हाँ, होने वाला हाँ, राइट। है। तो 13 को दुबई में आ रहा है। हाँ, राइट और वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के रिलेटेड ज़्यादा है, राइट? जी, हाँ, तो देखो एक पूरे दुनिया भर के इस्माइली है, तो अभी ये तय किया गया है कि दुबई में ये प्रोग्राम हो गए, पूरे दुनिया के इस्माइली में सब पार्टिसिपेंट है, वहाँ जमा हो गए, राइट? और ये फ़ानूस जो घुमाया जा रहा है, तो ये है कि एक तो ये सब जमात में इसको घुमाया जाता है, सब कंट्री में, जहाँ भी पॉसिबल है। पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई कल्चरल प्रॉब्लम वहाँ उसको घुमाया जाता है। तो पहले तो ये सबको जानकारी हो कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, राइट? पहला ये है कि वो जैसे कि हमारे जमात में आया, हमने फ़ोटो खिंचवाए, हमको इस चीज़ का सर्कुलर पढ़े गए, हमने वो चीज़ को देखा, तो हमको जानकारी मिली कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, सारे इस्माइलियों का एक जगह पे, राइट? एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ कि हमारे बच्चे जो ख़ास करके यंगस्टर हैं, तो मौला और जो काउंसिल और हमारी जो इंस्टीट्यूशन ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो जवान बच्चों के जो शौक है, स्पोर्ट्स के या उनके पास के कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो उनके अंदर जो टैलेंट है, वो बाहर जाके तो उसको कर सकते हैं, लेकिन जमात के अंदर भी करें तो जमात के जो यंगस्टर है लड़के-लड़कियाँ, वो हमेशा एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, राइट? और एक इनोसेंटली ये सारी टैलेंट एन्जॉय कर सके। तो क्या उससे उससे क्या होता है कि हम हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में रहते हैं, जवान बच्चे-बच्चियाँ एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमारे जो फ्यूचर के जो रिलेशन है, राइट? वो भी जी, जी, हमारे हमारे फैमिली में, हमारी जमात में रहते हैं, राइट? और एक तो इस तरह फ़ानूस घुमाने से क्या होता है, एक जमात में एक दिली, एकता, मोहब्बत की भी एक सिंबल है, राइट? कि एक 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 ही चीज़, कॉमन चीज़ सारी जमात में घुमाई जाती है। फ़ानूस एक है, लेकिन जमातें सब अलग-अलग है, तो एक एक ही चीज़ सारी जमात में घूमती है, राइट? तो एक जी, यूनिटी की भी वो सिंबल है, प्रतीक है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में आती है, बराबर? जी, जी। थैंक यू हुँ। सो मच। मैंने कोई इतना इसका ज़्यादा थैंक यू। स्टडी नहीं किया, लेकिन जैसे ओलंपिक खेली जाती है, तो उसका भी जो सिंबल जो होता है, बनाया होता है, वो भी पूरी दुनिया में घुमाया जाता है। बाद पूरी में हाँ, लास्ट में राइट, जहाँ राइट। इवेंट होने वाला है, वहाँ पहुँचता है, राइट?
अच्छा, राइट, तो राइट। जो लोग नहीं भी जा सकते फिजिकली वो भी उनको टच करे, देखे, उसको फोटो गिरावे, राइट? उनको पता चले कि भई और ज़्यादातर यंगस्टर लोग हमारे इस्माइली बच्चे-बच्चियाँ, यंगस्टर लोग हुँ, एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहें और राइट, जैसे कि बच्चों की मंगनी या शादियाँ बाहर कौम में होती है, राइट, राइट, तो उससे क्या प्रैक्टिस मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के एग्ज़ैक्टली। लिए भी और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी, राइट? जी, तो जी, हमारे बच्चे-बच्चियाँ जो स्पोर्ट्स है और दूसरी भी कल्चर और दूसरी भी एक्टिविटी है, जो उन्हों में टैलेंट है, तो उसको राइट, ध्यान में रखते एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहें। हमारे इस्माइली बच्चे-बच्चियाँ एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, तो एक-दूसरे को समझ सके, एक-दूसरे के करीब आ सके और फ्यूचर में भी वो रिलेशन उनको शादी के लिए और दूसरे बिज़नेस, नौकरी और काम के लिए भी काम आवे, राइट? तो एक ये यूनिटी है, राइट? एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए और अपने टैलेंट अपनी जमात के अंदर भी वो बता सकें, यस, स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के लिए। और थैंक एंड के यू। अंदर तो सारी चीज़ें हैं, मौला के सारे जो इदारे हैं, एजुकेशन बोर्ड कहो, हेल्थ बोर्ड कहो, इकोनॉमिक ग्रोथ कहो, तो ये सारी जो दुनिया की चीज़ें मौला जो करते हैं अपने काउंसिल और इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसका हाँ, चीज़ है कि हमारी दुनिया बेहतर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम आसानी से हमारा मज़हब को हम फ़ॉलो कर सकें, एग्ज़ैक्टली, राइट? राइट, तो राइट, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी जैसे सिद्धपुर का एक फरमान है, शाह करीम ने बहुत सारे दुनिया के फरमान फरमाए। लास्ट में मौला ने फरमाया कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप सब चाहते हो, कि आप दुनिया की प्रगति चाहते हो, प्रोग्रेस और जो अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं भी आपको नसीहत करता हूँ। लेकिन मौला ने फरमाया जैसे शाह करीम दुआ देते थे, तो मौला ने फर रिमेंबर आई टोल्ड दीन फर्स्ट कि याद रखना कि मैंने आपको दीन के लिए पहले दुआएँ दी है, बाद में दुनिया के लिए दी है, राइट? यस, तो क्योंकि दुनिया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, वो हम जब ये जिस्म छोड़ देंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन रूहानी ज़िंदगी वो अनंत है मौला ने फरमाया, बराबर? तो थैंक यू करीम उसका भाई, आपने बहुत अच्छा समझाया। एटलीस्ट हम अपने बच्चों को तो कुछ बता सकेंगे ना कि ये क्या चीज़ है। हाँ, वो तो तो बच्चों को समझते हैं बस हम फानुस जैसे आया, गया, हाँ, खत्म। राइट, उनको राइट, राइट। कुछ डिटेल की उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनको समझने की वो तो चाहते हैं कि बस हम एन्जॉय करें, डांडिया रास हाँ, खेलें, ये करें, वो करें। यंगस्टर की बात करती हूँ जो सब राइट, नहीं, राइट, सबकी राइट, बात राइट, नहीं है। राइट, राइट। तो तो वो आपकी मैंने बात कहा एकदम आपसे सही पूछ है। के आप जो है वो डायरेक्ट आपसे मतलब सही सही जगह से मैं पूछ रही हूँ, हुँ, हुँ, बजाए कहीं और के। हुँ, हुँ, तो ये आज मौका मिला, वरना रात के साढ़े 11 बजे तो हम नहीं आ सकते, हुँ, हुँ। जब हमारे दुबई में होती है आपकी क्लास। राइट, तो राइट। आज सही टाइम था तो हम पहुँच गए। शुक्र मौला। तो इंशाल्लाह हम बात इसलिए करते शुक्र, रहेंगे। शुक्र। देखो जैसे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज हमने जो शाह रहीम के फरमान मुबारक पढ़े, तो उसके अंदर मौला ने फरमाया कि रिमेंबर आई टोल्ड दिन फर्स्ट। तो मौला ने शुरुआत की कि या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली पाक इमामों के नाम की तस्बीह पढ़ो, राइट? अपने मज़हब को यस, फुल टाइम मौला ने फरमाया हाज़र नाज़र समझो, राइट? उसके बाद में मौला ने फरमाया कि इससे आपको हिम्मत शक्ति मिलेगी, शांति और सुकून, खुशी मिलेगी, मेरी दुआएँ भी है। बाद में मौला ने क्या फरमाया, उससे जो टॉप लेवल है, उससे धीरे-धीरे नीचे आके कि ज़ाहिर में इबादत बंदगी की जो जगह है, वहाँ भी अच्छी तरह जमात को इल्म जी, मिले, इबादत बंदगी हो और मौला ने कहा है कि प्रेयर हॉल के बाहर भी ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक्टिविटी और रिलीजियस नॉलेज के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए और अच्छी तरह कंफर्टेबली लोग को ये चीज़ हासिल करे, उसके लिए काम करना चाहिए। तो देखो यानी दीन और दुनिया को साथ रखे मौला, ये बता रहे हैं। हाँ, हाँ, बराबर है। स्टैंडर्ड लेकिन ऑफ लिविंग के लिए मैं कोशिश करूँगा। राइट, राइट और स्पेशली अभी जो ये फानूस और वगैरह ये जो एक्टिविटी है, तो मौला ये चाहते हैं कि हमारे इस्माइली बच्चे जो जवान है, खास करके बच्चे-बच्चियाँ, वो एक-दूसरे से कनेक्टेड रहे। राइट? राइट, तो आपके पास राइट, जो राइट। भी टैलेंट है, स्पोर्ट्स या कुछ भी टैलेंट है, वो आप हमारी जमात में भी बहुत आपको इसका मौका मिलेगा। आप टैलेंट बता सके हुए और हमारे जो जवान बच्चे-बच्चियाँ एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएँगे, राइट? तो राइट, इससे राइट। क्या होगा कि हमारे जो ख़ास करके जो बाहर जो रिलेशन में हमारी बच्चों की शादियाँ होती है, राइट? क्रिश्चियन या जूस के इसमें होती है, वो हाँ, कम हो जावे
और हमारे जमात के अंदर ही हमारे बच्चे शादी करें, एक दूसरे के कनेक्टेड में रहे, तो उनकी औलाद भी इस्माइली मज़हब की अच्छी प्रैक्टिस कर सके, राइट? तो कहने का मतलब ये जितनी भी बच्चों की, जवानों की एक्टिविटी होती है, तो ये मौला चाहते हैं कि हम हमारे पूरे ग्लोबली बच्चे, जवान एक दूसरे के कनेक्टेड आवे, एक दूसरे के कनेक्शन में रहवे। वो इवेंट पूरा हो जावे उसके बाद भी एक दूसरे के कनेक्टेड रहवे, राइट? एक दूसरे को समझे, एक और दूसरे एक के तरह करीब से आए। यूनिटी भी हो, हाँ, यूनिटी यूनिटी भी कायम हो। हो, मोहब्बत भी हो, अपना टैलेंट भी बता सके और उसका रूहानियत बातों में है कि हम हमारे ज़िंदगी भर हमारे हमारे समाज में, हमारे इस्माइली समाज में रहे, हमारे रिलेशन, शादी के और यस, सारे, यस, राइट? हम न करीब राइट, आए, एक दूसरे को समझे। सही है? यस। थैंक यू करीम भाई, मौला वो यू आर ब्लेस मोस्ट यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह अभी जिसको सवाल है, बात करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को और करेंगे। इस तरह आप आते रहना और थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम एक गिनान की कड़ी थी असवारी की, जो मैं अभी पढ़ूँगा, तो फिर हसन कबीर माँ-बाप का गिनान है। तो एजी पहलो रे नाम खुदा जी को लीजे, पहलो रे नाम खुदा जी को लीजे, बाबा नाम गीड़े जीव छूटे, बाबा नाम गिड़े जीव छूटे। तो फिर हसन कबीर माँ बाप ये गिनान में नसीहत करते हैं कि पहलो रे नाम, जैसे मौला ने यहाँ शुरुआत की कि या अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, राइट? तो पहले नाम खुदा जी को लीजिए और हम हमको मोहब्बत से बोला, बावा करके हम बोला, हमको पापा पापा करके समझाया हमको, बावा नाम गीड़े जीव छूटे। इस तरह मौला का नाम लेने से तेरा जीव छूटेगा। और लास्ट में कड़ी है, ए जी शाह परसादे पीर बोलिया हसन शाह, शाह परसादे पीर बोलिया हसन शाह, सामी राजा असवारी वेलड़ी कर जोजी, सामी राजा असवारी वेलड़ी कर जोजी, है जिंदा कायम पाया शाकिर पाया। तो यहाँ से शुरुआत की कि मौला को याद करते रहो, मौला के हाज़िर इमाम के नाम को, पाक इमामों के नाम को, रसूलुल्लाह के नाम को, या अल्लाह की तस्बीह पढ़ो और उसमें ध्यान लगाओ कि इल्म बिना तू पाक क्यों हो पाएगा। और लास्ट में बताया कि मौला तेरी मेहरबानी से मैंने गिनान बोला है, फिर हसन कभी न माफ फरमा, और मौला को आजीजी करते कि सामी राजा असवारी वेलड़ी कर जो, मौला जल्दी से आना, यानी मेरे दिल में तू रोशन हो जाना। मौला ने फरमाया ને કે તમે તમારા રૂને રસ્તામાં સુકાઈ જવા નહીં આપો, પણ જલ્દીથી। तो यहाँ बोला है कि वेलड़ी, वेलड़ी यानी बहुत जल्दी करना, बोला अभी नहीं रहा जाता तेरे बगैर, सामी राजा असवारी वेलड़ी कर जो, मेरे दिल में तू रोशन हो जाना। सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम एक फरमान मुबारक की यादी देंगे और दुआएं देके लंबी चालीस पूरी करते हैं। शुक्र। આજે સાંજે અમે સિધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે બે બાબતો યાદ રાખો। એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેક દરેકની યાદ, દરેક દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું। બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે કરતા અમારી જમાત માટેનો અમારો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે। અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે એ યાદ રાખો કે જ્યારે અમે સિધાવીશું ત્યારે તમારામાંના દરેક દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં અને અમારા વિચારોમાં હશો। વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે, તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતા ઘણું જ વધુ ચાહે છે। અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ। ખાના વદાન અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ। ખાના વદાન, ઉત્તમ દુઆ આશીષ, ખાના વદાન। हाजरीन, तमाम इल्म इजलसना भाई बहनों ने અને જગતબાના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન
धनी सलामत दातार सरकार आका नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाजरी माम મહેરબાની કરી કરમ બરશી ફરમાવી દયા કરી મૌલા દરેકને સુખી સલામત ને આબાદ રાખે આમીન ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે આમીન બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે આમીન બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે આમીન બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે આમીન મૌલા દરેકનું અને બચ્ચાઓનું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે આમીન મૌલા દરેકને જમાખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રાખે આમીન મૌલા દરેકને દુઆ દસોન શુક્રીદ ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે આમીન મૌલા દરેકની ખિદમત કબૂલ કરે ખિદમત આમીન દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખે વધારે ખિદમત આપે આમીન વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત અને શક્તિ આપે ખિદમતનો બદલો આમીન દીન અને દુનિયામાં આપે આમીન મૌલાએ મહેરબાની કરી કરમ બશી ફરમાવી દયા કરી આપણા બધાની ખિદમત કબૂલ કરી ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો મૌલાએ વધારે ખિદમત આપી ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખી ખિદમત કરવા માટે હિંમત શક્તિ ને પ્રેરણા આપી આપણે મૌલાના લાખો લાખો શુક્રિયા અદા કરી છે શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલા આમીન મહેરબાની કરી કરમ બશી ફરમાવી દયા કરી મૌલા દરેકના કુલ ગુનાહ માફ કરે આમીન કરીમભાઈ તમારો અવાજ નથી આવી રહ્યો. હલો હા આવી રહ્યો છે હવે હા હવે આવ્યું કરીમભાઈ. હા મૌલા મહેરબાની કરી કરમ બશી ફરમાવી દયા કરી મૌલા દરેકની કુલ મુશ્કેલીઓ બીમારી બલા આફતો તકલીફો મૂંઝવણો ગેરસમજણો દૂર કરે આમીન મૌલા દરેકને ધંધો રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે આમીન મૌલા ઇલમ ઇજલિસના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં ફેમિલીમાં કુટુંબમાં જમાતમાં સંપ સલાહ ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે આમીન લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે આમીન આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ શાંતિ સલામતી અને આબાદી ફેલાવે આમીન આપણા દિલ નૂર ઈમાન નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે આમીન ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે હકીકતી સાચી સમજ આપે આમીન મૌલા પોતાની જાહેરી બાતોની નુરાની દીદાર નસીબ કરે આમીન આ જન્મ જ આપણને મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે આમીન હાજરીન તમામ ઇલ્મ ઇજલિસના ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ રહીમ અલ હુસૈની હાજરી મામ કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહ માફ કરે આમીન બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે આમીન અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે આ શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થેન્ક યુ વેરી મચ તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર યા અલી મદદ મૌલા અલી મદદ